जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर इन अ वेरी गुड शेप। नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया सीखने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसी पॉलिटिक की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे इज आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। व्हाट दिस union and its territory basically wants to say to us, and what is written in our M. Lakshmikant. Okay, so as usual, I have divided the whole chapter in parts, and we are starting with the part 1, that is introduction. So you know that our constitution contains more than 300 articles. So first we are going to start with the article 1. The union and its territory are dealt with under part 1 of the constitution, covering article 1 to 4. अब article 1 to 4 में हमारी union और territory की बात की गई है। वन बाय वन हम हर एक आर्टिकल को इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि what these articles wants to say. Okay, so this is the part 2, and here we are starting with the understanding article 1, that is union of states. First part is naming the country. I hope you all are very much aware about that the book written by S. Jaishankar, the book named is Why Bharat Matters. So you have seen in the UN too, S. Jaishankar sir has recently used the name Bharat instead of using the word India. And every people are emphasizing on this word, so they just want to show that this is the name of our country. So I personally prefer this thing. Whatever the name of our country, we should respect that. So here it is already written in our constitution, that is article 1 describes India, that is Bharat, as a union of state. हमारा country जो इंडिया भारत है वो एक union of states है. This provision addresses two things: the name of the country and the type of polity. आप union of states एक ऐसा वर्ड है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी कंट्री का पॉलिटी किस टाइप का है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिक्स ट्रेडिशन लिया था, भारत भी लिया था और आज का जो मॉडर्न नेम है इंडिया, दोनों को लिया था, ताकि उनके बीच में जो उनके मेंबर्स के बीच में जो भी डिबेट चल रही थी लैंग्वेज को लेकर, लिंग्विस्टिक इश्यूज के बारे में, उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये चीज़ बोला गया था कि हम इंडिया और भारत दोनों वर्ड यूज़ करेंगे टू सॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट और इवन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स. So why union of a state and not federation of a state? As you know that US having a federation of a state. So basically union of a state and federation of states में क्या difference है? Okay, आप ऐसा समझ लो, आप आपकी कंपनी है, ओके, उसमें आपके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं आपके जो आपके साथ आके एक डील साइन करते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे और हम आपकी पूरी बात मानेंगे एज दे आर पार्टनर्स ऑफ दिस कंपनी. सो यू विल वर्क इन अ ग्रुप, यू विल वर्क लाइक अ पार्टनर, वी विल वर्क हैंड इन हैंड, साथ में चलेंगे, सब एक रूल फॉलो करेंगे और कंपनी की ओवरऑल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे. बट हाँ, हर मेंबर के पास ये फ्रीडम भी है कि वो अलग भी हो सकता है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी और इट इज़ नॉट बाउंडेड ऑन देम कि दे हैव टू बी विथ यू टिल द एंड. But if we talk about the union of a state, it is like a family where you have family members, where one person is a head of the family, and all person will be like work under him or will like be under his guidance. So this is what I want to say. Union of a state is something like you can't be separated from your like family. It is a union. It is bonded that you have to be together always. So this is why India is a union of a state instead of being a federation of a state. As there are states that are like they are under are the guidance of the central government. So we can say that we are also having a federation of states, but it is not truly that it is India is completely the federation of a state. We are actually the union of a state, and we don't our states do not have the right to cede from the nation, from the union. So our country is described as union even though it has a federal structure. I hope you understand what this line wants to say, as I haven't already understood made this clear. So Dr. B. R. Ambedkar gave two reasons for this choice. Dr. B. R. Ambedkar ने दो reasons दिए हैं यूनियन ऑफ स्टेट चूज करने के ओवर द फेडरेशन ऑफ स्टेट. फर्स्ट, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. आपको जैसे मैंने बताया कि आप बिजनेस डील में आपके पार्टनर्स आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है. इंडियन फेडरेशन जितने भी स्टेट्स हैं वो किसी एग्रीमेंट के तहत एक साथ नहीं है जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन में है. ठीक है, तो स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सीड. स्टेट्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं है. आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसा कोई राइट नहीं होगा कि मुझे ये फैमिली छोड़ देनी है, ऐसा कुछ. वो आपकी आइडेंटिटी है तो आपको उसके साथ रहना है.
तो दिस इज द थिंग विद द इंडियन स्टेट्स, दे डू नॉट हैव द राइट टू secede from the federation. Okay, so the federation is a union because it is indestructible. indestructible वर्ड पे थोड़ा फोकस करना है, इसके आगे एक लाइन आएगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, और ये सीडीएस का पीवाईक्यू है, इवन इट केम इनटू द सिविल सर्विसेज आल्सो. So territory of India. According to the Article 1, the territory of India is classified into three categories. First, the territories of the states, obviously all the states, all the major states of the country. Then there's the union territories, these are the small territories of the union, जिसको गवर्न करने के लिए वो उतनी बड़ी लैंड नहीं है जिसको गवर्न करने के लिए पूरा एक प्रॉपर गवर्नमेंट की नीड है, तो वहाँ पे आपको एलजी एंड ऑल गवर्न करते हैं. देन द थर्ड पार्ट इज टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, जो कि हम टेरिटरी को आगे जाके एक्वायर कर सकते हैं बाय एनी मीन्स. ओके, so acquiring foreign territories as a sovereign state India can acquire foreign territories. हम sovereign हैं, हम बिल्कुल फ्रीडम इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर नहीं है, तो हम जब चाहे तब एक्वायर कर सकते हैं फॉरेन टेरिटरी को बाय इंटरनेशनल लॉ, सच एज सेशन ट्रीटी करके, परचेज करके, ऑक्यूपेशन से, या फिर कॉन्क्वेस्ट से, वॉर वॉर में. ठीक है, एक जैसे कि एग्जांपल है, इंडिया ने एक्वायर किया था टेरिटरी जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ऑल आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें अपने में एक्वायर की थी. Okay, so now we are going with the part third. Part third says that Parliament's power to recognize a state. Parliament के पास power है, आर्टिकल 1 हमने पढ़ लिया अच्छे से, जो कि आपको बेसिकली डेफिनेशन देता है इंडिया दैट इज भारत. Okay, so now we are going for the article 2. Article 2 is says that, आप ऐसा समझ लो इसको याद करने का तरीका कि आप अपने पास पहले अपनी चीज़ का डेफिनेशन देते हो, उसके बाद कोई चीज़ बाहर से लेके आओगे, उसके बाद ही तो उसको घर में जो भी चेंजेस करना है. अभी नहीं समझ में आएगा, आगे बताता हूँ, ये चीज़ समझ में आएगी, क्लियर होगा. नाउ आर्टिकल 2, एडमिटिंग न्यू स्टेट्स. सो पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, तो आर्टिकल 2 आपको एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स. Two powers under Article 2. Power to admit states that are already in existence. Part 2, that is power to establish new states which were not in existence before. So what this article number 2 wants to say? Article number 2 wants to say that parliament के पास power है new states country में include करने के लिए. First point is saying that already in existence. Let's suppose if any country already having that state and that state is already in coexistence, so उसका कुछ नाम होगा, उसके कुछ rules होंगे, उसके कुछ properties बटे होंगे, सब कुछ उसका well डेवलप्ड होगा. तो अगर हम उस टेरिटरी को, उस स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 2. एंड द सेकंड इज, अगर कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है, नॉर्मली किसी कंट्री के किसी पार्ट को हमने एक्वायर किया, बाद में उसका कुछ नाम रखते हैं, उसको अपने उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उसके लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो बेसिकली वो पार्ट एक लैंड की कुछ था नहीं, बट हमने उसको एक स्टेट का नया नाम दिया, उसको नए तरीके से अपने कंट्री में ऑक्यूपाई किया है. तो these are the ways, the thing that article number 2 wants to convey. So there are key distinctions. Article 2 deals with the states that are not already a part of the Union of India. Hope you understand what I try to saying in this. जो आपका पार्ट नहीं है कंट्री, इंडिया की यूनियन में अभी जो है उसका पार्ट नहीं है, आर्टिकल 2 के अंदर वो आता है. आर्टिकल 3 क्या मैंने बताया कि पहले किसी चीज़ को बाहर से लेके आओ, उसके बाद ही उस चीज़ के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो. तो आर्टिकल 3 बेसिकली इज ऑल अबाउट रीऑर्गेनाइजिंग एग्जिस्टिंग स्टेट्स. आपके स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है. अब पहला है इंटरनल रीएडजस्टमेंट. आर्टिकल 3 आपको ये बताता है कि आपकी कंट्री के अंदर, आपकी यूनियन में जितने भी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, जो भी लैंड आपकी कंट्री में आती है, उसको आप चेंज कर सकते हो, आप उसको तोड़ के नया स्टेट बना सकते हो. आगे हम पढ़ेंगे भी कितने सारे स्टेट्स नए बने हैं. इनिशियली हमारे पास सिर्फ 14 स्टेट थे, कैसे आज हम इतने स्टेट्स पे आ गए. हम किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं. आप इस वर्ड को फोकस करना, डिमिनिश. सो आर्टिकल 3 में एक वर्ड लिखा हुआ है कि आप किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकते हो. देन देयर्स आर्टिकल आफ्टर द बाउंड्रीज, अल्टर द बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एनी स्टेट. हम किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं. दो कंडीशन लेगिस्लेशन की. अ बिल फॉर सच चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर. अब जो भी आप मान लो किसी स्टेट में, एग्जिस्टिंग स्टेट में बॉर्डर चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो आपको उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. और
प्रेसिडेंट को भी रिकमेंड करने से पहले उस कंसर्न स्टेट को जिसके बारे में आप चेंजेस लाने वाले हो उसके व्यूज जानने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड करेंगे कि इतने के अंदर, इतने टाइम के अंदर आपको अपने व्यूज देने हैं कि इस चेंज को लेके आपकी स्टेट की गवर्नमेंट का क्या कहना है. But, however, power of the president and parliament. The president is not bound by the views of the state legislature. It's like president be like, देखो चेंज कर रहे हैं, देख लो कुछ अच्छा बुरा लग रहा है तो बता दो, बाकी करना तो है ही. तो दिस इज लिटरली लाइक दिस कि प्रेसिडेंट भेजते हैं रिकमेंडेशन से पहले आपके व्यूज जानने के लिए, बट उसका कोई मतलब नहीं है. आप हाँ बोलो चाहे ना बोलो, वो होना ही है. This is the part that I was saying, indestructible union of destructible state. This is the part that is as it is, ये स्टेटमेंट पेपर में आया हुआ है पीआईक्यू में. यहाँ पे ये कहना चाहता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन. इसका कहने का मतलब क्या हुआ इस वर्ड का, कि आपका जो यूनियन है वो टूट नहीं सकता. मैंने जैसा बताया था कि फैमिली टूट नहीं सकती है. ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? जो आर्टिकल 3 आपका कहता है, कि आर्टिकल 3 ये कहता है एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है, उसको दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है. तो आपका हमारा इंडिया में यूनियन तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो कि टूटा तोड़ा नहीं जा सकता, बट आपके स्टेट्स क्या है? डिस्ट्रक्टिबल है, जो कि तोड़े जा सकते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि नए स्टेट बनाए या फिर जो ऑलरेडी स्टेट्स है उनकी बाउंड्री को अल्टर कर सकें विदाउट देयर कंसेंट. अगर वो कंसेंट नहीं भी देते हैं या देते हैं, डजेंट मैटर, वो चीज़ चेंज होगी अगर पार्लियामेंट में ये चीज़ पास हो जाता है. Okay, this means the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed. आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर आज बॉम्बे स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, तो हम आगे जाके वो स्टेट की बाउंड्री उतनी ही रहेगी. इसकी गारंटी पार्लियामेंट नहीं देता है किसी भी स्टेट को. Okay, so the next part is article number 4, simple majority, not amendment. Article 4 declares that laws that comes under Article 2 and 3 are not to be considered constitutional amendment under Article 368. Article 360 is very important that we will surely study in the upcoming video. So what this Article 4 is saying, that Article 4 ये कह रहा है कि Article 2 और Article 3 के तहत, जो कि ये कहता है कि बाहर से किसी लैंड को अपने कंट्री में लाना या फिर अपने कंट्री में जो पहले से लैंड है उसको कुछ भी चेंजेस करना, ये दोनों करने के लिए आपको प्रॉपर आर्टिकल 368 लगा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं करवाना पड़ेगा. इसका कहने का मतलब कि आप सिंपल मेजोरिटी से भी इस चीज़ को पास कर सकते हो. What is simple majority, that we will study in upcoming video. Or simple majority, there are three types of majority that we will surely discuss in upcoming videos. Now simple meaning क्या है? This means such laws can be passed by simple majority in parliament just like any ordinary bill. किसी भी ordinary bill के तहत सिंपल मेजोरिटी के तौर पे इसको पास किया जा सकता है. सो नाउ सीडिंग टेरिटरी एंड बाउंड्री डिस्प्यूट. अब एक वेरी बुरी यूनियन केस जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, अगर नहीं जानते हो तो एक बार वो वीडियो प्लीज़ रेफर करना. वहाँ पे मैंने इसको बताया है और मैंने ये भी पूछा था कि अगर आप कहें तो आगे जाके सारे केसेस और जजमेंट्स की एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी. नाउ द बेरूबरी यूनियन केस. अब ये क्वेश्चन आता है कि वेदर पार्लियामेंट पावर, अब पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 3 में, जहाँ मैंने दिखाया था कि डिमनिश कर सकता है किसी भी आर्टिकल को. ओके, तो क्या उसके तहत, हाँ, तो उसके तहत गवर्नमेंट को ये लगा था उस टाइम पे जब हमारा क्या हुआ कि हमारी जब इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, तो रेड क्लिफ अवार्ड ने क्या किया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लाइन खींची जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल था. उसमें क्या हुआ, वो लाइन इतनी प्रॉपर नहीं थी, जहाँ पे बहुत से लैंड डिस्प्यूट्स हुए और उसको सेटल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, जो कि नेहरू थे और पाकिस्तान साइड से नून था. तो ये डिसाइड हुआ कि अपने कुछ पार्ट्स को डिमिनिश किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 3 में लिखा हुआ था कि आप अपने कंट्री के स्टेट के पार्ट को डिमिनिश कर सकते हो. तो उस चीज़ का इस तरीके से इंटरप्रेट करके जब लैंड दिया जा रहा था, तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया कंट्री में. फिर सुप्रीम कोर्ट में बीच में आना पड़ा एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आर्टिकल 3 डजंट कवर द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी. आर्टिकल 3 ये कहता है कि आपकी कंट्री के अंदर जो पहले से पार्ट है आप उसको तो चेंज कर सकते हो, बट बाहर से या अपने पार्ट को आप बाहर नहीं दे सकते हो किसी को. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन द बेरूबरी यूनियन केस. अब अगर आपको मान लो बाय एनी हाउ आपको वो टेरिटरी को सीड करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे रीजंस आ गए हैं, तो कोर्ट ने ये बताया कि आपको ऐसा करने के लिए 368 आर्टिकल का यूज करके
प्रॉपर अमेंडमेंट आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाना पड़ेगा, जहाँ पे एक प्रॉपर एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया जाएगा जिसके तहत आप दे सकते हो। इसी की वजह से नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें ट्रांसफर किया गया बेरूबरी यूनियन को पाकिस्तान के में, जो कि करेंटली बांग्लादेश है, सॉरी पाकिस्तान को भेजा गया। नाउ बाउंड्री डिस्प्यूट क्या हुए थे? तो हाउएवर इन 1969 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सेटलिंग अ बाउंड्री डिस्प्यूट डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शंस एज इट डज नॉट इन्वॉल्व गिविंग अवे इंडियन टेरिटरी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बाउंड्री डिस्प्यूट अगर करना है किसी भी स्टेट्स के बीच में, या फिर कहीं भी डिस्प्यूट हो रहा है बाउंड्री का, तो वहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव एक्शंस के तहत ले सकते हो। आपको वहाँ पे कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब तक अपनी कंट्री का कोई पार्ट सीड नहीं कर रहे हो, आप उसको खो नहीं रहे हो, किसी को दे नहीं रहे हो, तब तक आपको आर्टिकल 360 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी काम कर सकते हो। नाउ इंडिया बांग्लादेश एक्सचेंज हुआ था, फिर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जहाँ पे अब मान लो क्या हुआ, इनक्लेव्स थे हमारे इंडिया और बांग्लादेश के, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। अब क्या हुआ कि मान लो आपकी प्रॉपर्टी है इतनी, और एक टाइम पे अचानक से लाइन खींची जाती है जहाँ पे पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी खरीदी हुई सारा कुछ आपका है, बट वो दूसरे एरिया में है, दूसरे एरिया वाले की प्रॉपर्टी आपके एरिया में है। तो अब इस वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत क्लैश हुए उस टाइम पे, जहाँ पे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इंडिया अपने 111 एनक्लेव बांग्लादेश को देगा, और बांग्लादेश 51 एनक्लेव इंडिया को देगा, जहाँ पे जिसकी जो जमीन थी उसको वो मिल पाए, और ये जो इशू हो रहा था वो वहाँ पे उस टाइम पे रिजॉल्व हो पाए। ओके। सो अब मैंने जैसा बताया कि आर्टिकल 3 के तहत आपके पास पावर है कि कंट्री के स्टेट्स को आप चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, बाउंड्री को भी कर सकते हो, और एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट में बनाया जा सकता है। तो अब हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस के टाइम फिर 552 टोटल प्रिंसली स्टेट्स है, जिसमें 549 ने बहुत हंसते हंसते बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमको इंडिया के अंदर आना है, हमें इंडिया का पार्ट बनना है। बट तीन ऐसे स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिन्होंने मना कर दिया उस टाइम आने से। तो हैदराबाद को जब इंडिया में लाया गया तो किस तरीके से पुलिस एक्शन के द्वारा उसको इंडिया के में पार्ट किया गया। देन देयर इज जूनागढ़, जिसको रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है उनके वोटिंग से। देन देयर थर्ड इज कश्मीर बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जहाँ पे उनके किंग ने ये एसेशन को एक्सेप्ट किया था। नाउ इनिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली चार टाइप के स्टेट्स और टेरिटरी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट का एक क्लासिफिकेशन है जो कि हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट। अब डिमांड वैसी उठने लग गई कि आप स्टेट डिवाइड कर रहे हो, तो अब हर स्टेट में कुछ ना कुछ, हमारी कंट्री यूनिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी हम बहुत अच्छा शो करते हैं, तो हर कंट्री, हर स्टेट में बेसिकली अपने अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग कल्चर है, अलग हर चीज़ में हम बहुत डिफरेंसेस है। तो आवाज़ ये उठाई गई कि हमें हर स्टेट को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिसके वजह से बहुत से क्लैशेस हुए और बहुत से कमीशंस बनाए गए। द वेरी फर्स्ट कमीशन वाज धर कमीशन, जो कि 1948 में बनाई गई थी। उसने ये बोला कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का कर सकते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जैसा लगेगा उसके अकॉर्डिंग, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के द्वारा। जिससे ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी क्राउड किसी चीज़ की डिमांड कर रही है, अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो वो चीज़ और एक्सक्लेट होगी। तो उसके बाद फिर जेवीपी कमेटी बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया आए, जिन्होंने ये रिजेक्ट किया कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे हम रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अगेन सेम चीज़ कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड है। इसकी वजह से क्या हुआ कि 56 डे का एक हंगर स्ट्राइक किया गया, किसके द्वारा? पत्ती श्री राम मुल्लू के द्वारा, जिसके बाद 56 डे हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद ये इशू इतना एस्केलेट हो गया कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे उनकी डिमांड्स को मानना पड़ा, और फर्स्ट स्टेट बनाया गया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज Andhra Pradesh. Kindly note this point that Andhra Pradesh was the first state that was made on the linguistic basis. It is done by separating Telugu speaking areas from the Madras state. Okay, got it. So now इस चीज के बाद इसको प्रॉपर एक डायरेक्शन देने के लिए कमीशन बनाया गया, दैट इज फजल अली कमीशन। उसने, फजल अली कमीशन में कौन कौन मेंबर थे? फजल अली, के एम पानिक्कर एंड एच एन कुंजरू। अब इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और इन्होंने बोला कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो स्टेट्स को, बट
आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर ये तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग पर्सन ही रह सकते हैं। तो इट ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। आप अपने स्टेट का नाम रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, अलग तरीके से रख सकते हो, बट आप इंडिया के बाकी पीपल को ये नहीं डिसअलाउ नहीं कर सकते हो वहाँ आने से। दिस इज व्हाट फजल अली कमीशन सेड। तो इट सजेस्टेड द एवोल्यूशन ऑफ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, जो हमने पार्ट बात किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, इसको इसने एबॉलिश किया यहाँ पे। इसी कमीशन के रिपोर्ट के बाद आपका सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आएंगे आपके, एंड उसमें हम इसको बहुत ही ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। इसी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद पार्ट ए और बी को रिमूव कर दिया गया, पार्ट सी स्टेट को हटा दिया गया। उसके बाद जो टोटल स्टेट्स बने थे वो 14 स्टेट बने थे, 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी नवंबर 1 1946 को। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी बातें हुई, क्लैशेस हुए, उसके बाद और भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। देन अब ये पार्ट आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा, पार्ट 6 जो कि है न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो कि बनाए गए थे 1956 के बाद। तो फर्स्ट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकर्स एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकर्स। इसी की वजह से गुजरात हमारा बनता है 15th स्टेट। Then गोवा दमन एंड दियो एक्वायर्ड फ्रॉम द पोर्तुगीज वाया पुलिस एक्शन के द्वारा पोर्तुगीज से लिया गया, और गोवा को फिर एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया 1987 में, जिसके लिए आज लद्दाख भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। नाउ अनदर इज पुडुचेरी, दैट इज 1962, द फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट था पुडुचेरी, जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, देन इट्स नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही हरियाणा, चंडीगढ़, ये आपको पढ़ के याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। नाउ 36th अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड मेकिंग सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट फ्रॉम द 22nd स्टेट। अब सिक्किम का एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिक्किम 1975 में इंडिया में आया, बट इनिशियली 1974 में 35th अमेंडमेंट एक्ट, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। 1974 का 35th अमेंडमेंट एक्ट ने इनिशियली सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया था। एसोसिएट मतलब वो आपको एज अ पेरेंट मान रहा है, आप उसकी सारी चीज़ें आप ही हैंडल करोगे, बट वो कम्प्लीटली आपके अंडर नहीं है, उसके खुद के राइट्स हैं, खुद के लॉ हैं जो फॉलो करना चाहता है। बट 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम के पीपल ने रेफरेंडम के द्वारा वोट किया और बताया कि हमें इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बनना है, जिसके बाद 1975 को फाइनली सिक्किम को इंडिया का 22nd स्टेट का दर्जा मिल गया और वो इंडिया का एक पार्ट बन गया। देन देयर इज मिजोरम, अरुणाचल एंड ऑल जम्मू कश्मीर, लद्दाख। पार्ट 7 में क्या है आपका लास्ट पार्ट, दैट इज चेंजेस ऑफ नेम। अब हमारे आर्टिकल 3 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि आप नेम भी चेंज कर सकते हो इवन विदाउट देयर कंसेंट। सो पहला यूनाइटेड प्रोविंस पहला स्टेट बना जिसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश। देन मद्रास का तमिलनाडु, मैसूर का कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन देवी आइलैंड को लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रीडिजाइन किया गया, डेजिग्नेट किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उत्तरांचल को उत्तराखंड, स्टिल देयर इज उत्तरांचल यूनिवर्सिटी स्टिल इन द Uttarakhand, so Dehradun. Now Pondicherry was named as Puducherry. Odisha is Odisha in 2011. This is what we have studied in the chapter number 5, that is Union and its treaty. I hope you all have learned something new in today, and you have successfully utilized this day and I wish you will make it more productive by doing some more productive things. I hope you all the best, and we'll try to make it complete this series as soon as possible. Signing off, Jai Hind.